My name is Kushagra Gupta from BCA first year. Today I am going to present you a topic, multi-threading, one of the important topics in Java. Also I would like to familiarize my teammates Pradeep Rai and Shubham Raje. I would like to call Pradeep Rai for the further presentation. Hello everyone, myself Pradeep Rai. I am from BCA first year and I am here to present multi-threading using Runnable interface in front of you all. In Java, multi-threading can be achieved using two ways. First one is by stating thread class and second one is by implementing Runnable interface. My topic is Runnable interface. Runnable interface in Java is a function interface that we use to define the task that can be executed. It must be implemented by a class that must execute the task concurrently. This interface contains a single method run, inside which we define the task that the thread will execute. Let's understand this example. Here the class myTask implement Runnable interface. यहाँ पे जो क्लास है myTask वो Runnable interface को implement कर रहा है. उसके बाद हम लोग ने run method को override किया है, जो कि इसमें फॉर लूप लगा है, जो कि 1 को लेकर 5 तक चलेगा और वो एक रनिंग को साथ में प्रिंट करेगा. यहाँ पर हमने थ्रेड को इंटरप्ट किया है स्विच मेथड की हेल्प से. इसको कैच करने के लिए हम लोग ने यहाँ पे एक्सेप्शन भी डिफाइन किया है. यहाँ पे हम लोगों ने रनेबल इंटरफेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है माई थ्रेड. और यहाँ पर हम लोगों ने जो इम्प्लीमेंट कर रहा है रनेबल इंटरफेस क्लास, उसका इंस्टेंस क्लास दिया है टास्क करके, वो है ऑब्जेक्ट है. और यहाँ पर हमने थ्रेड स्टार्ट मेथड को कॉल किया है. As the run method is a part of Runnable interface, so it can't be directly invoked by calling the start method. So we have passed the instance of class implementing Runnable during the thread object creation. And my topic is multi-threading, thread class. A thread in a programming is a basic unit of execution within a process. In object-oriented programming, the thread class is used to represent a thread in Java or any other languages with a similar content also. It allows concurrent execution of 2 or more paths in a same code. For example, the thread class is a part of java.lang package, and it's used to create and manage threads. By creating a thread, a program can perform multiple tasks simultaneously, improving efficiency, especially in tasks like downloading files, processing data, and handling user input. And there are second topic will be key method. First will be start, run, sleep, join, and get ID. And here is the program. Example of thread class. Thank you. So basically मल्टी-थ्रेडिंग होता क्या है जावा में. अब हम बेसिकली स्टार्टिंग से जानते हैं होता क्या है. मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग आर बोथ यूज्ड टू अचीव मल्टीटास्किंग. तो अगर मैं एक नटशेल में इसको कंक्लूड करूँ तो क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस बनाते हैं जिससे सिस्टम पे हैवी लोड पड़ता है. लेकिन मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है, हम मल्टीपल थ्रेड्स जरूर क्रिएट करते हैं बट उससे सिस्टम पे लोड नहीं पड़ता है क्योंकि वो एक ही प्रोसेस में सारे थ्रेड्स इंक्लूड होते हैं. इसमें एक्सटेंडिंग द थ्रेडिंग 2 तरह से अचीव करी जा सकती है. एक होता है एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास, एक होता है रनेबल इंटरफेस के द्वारा. फर्स्ट में क्या होता है, हम एक्सटेंड कर रहे हैं थ्रेड क्लास को और कुछ नहीं कर रहे हैं. सेकंड में क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं रनेबल क्लास को. अगर मैं इसको आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं, इसको अगर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाऊं तो यहाँ आप देखिए वही सेम कोड लिखा है. इसमें मैंने क्या किया, बेसिकली एक्सटेंड किया किसको, थ्रेड क्लास को. इसमें मेरा कोड चल रहा है लेकिन किससे चल रहा है, एक्सटेंड करके चल रहा है. मैंने थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया है. इसी के अगर मैं सेकंड ऑप्शन दिखाऊं आपको तो एक रनेबल के द्वारा भी होता है. तो इधर मैंने आपको दिखाया कि एक रनेबल से भी हो रहा है और एक एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास भी हो रहा है. अगर मैं फर्दर टॉपिक्स पर डिस्कस करूँ आपसे, और एग्जांपल्स भी मैंने लिखे हैं. और अब मैं मेन चीज़ पे आता हूँ, लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड क्लास. इसमें क्या होता है, पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, उसके बाद वो रनेबल फेज में जाता है, चलता है, उसके बाद जब चल के पूरा एग्जीक्यूट हो जाए
फिर ब्लॉक कंडीशन जाएगा, उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा लास्ट में। बेसिकली इधर भी यही सब लिखा है। न्यू में क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ थ्रेड क्रिएटेड विच इज नॉट येट स्टार्टेड बाय इन्वोकिंग स्टार्ट रनेबल आफ्टर invocation of start and before it is selected to be run by the scheduler, running after the thread scheduler has selected it। नॉन रनेबल स्टेज क्या होती है, थ्रेड अलाइव नॉट एलिजिबल टू रन एंड टर्मिनेटेड, लास्ट में मेथड टर्मिनेट हो रहा है। इसमें और भी एग्जांपल्स हैं, सिंगल थ्रेड और मल्टीपल थ्रेड। सिंगल थ्रेड में अगर मैं दिखाऊं तो अगर मैं रन करूंगा तो सिर्फ एलाइज प्रिंट होगा 5 टाइम्स। मल्टीपल थ्रेड में आपको मैं ये प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। सिंगल थ्रेड में क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 बार एलाइज प्रिंट होगा, तो वो हुआ है। इसमें मैंने एक ही थ्रेड लिया है। अब मैं मल्टीपल का भी दिखाता हूँ आपको एक बार। मल्टीपल में अब हम देख सकते हैं, अभी तो ये सीक्वेंस में आ रहा है, एलाइज बीओबी, बट इसको मैं अगर एक बार रन करूँ तो इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि इसका सीक्वेंस कुछ सेम नहीं रह सकता। इस बार भी सेम है, नेक्स्ट टाइम सेम है अगेन, डिफरेंट आ जाओ। इस वाले में आप देखो कि ये डिफरेंट आया है पिछले वाले से। तो बेसिकली इसमें हम कुछ कह नहीं सकते कि सीक्वेंस में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये थ्रेड्स जो हैं किसी सीक्वेंस में नहीं होते, ये थ्रेड शेड्यूलर के हिसाब से डिसाइड होते हैं कौन से सीक्वेंस में कौन सा आएगा।